कौन सी फैमिली हमने लास्ट लेक्चर में की थी? हेलो, Acanthaceae. And as far as family Acanthaceae considered, it is one of the important family of previous Gamopetalae. We have studied the important characteristic features of Acanthaceae, that is including bilabiate corolla and many more important plants which having medicinal properties also. So that we have studied in our previous lecture. Let us have a look to our family which we have completed in our previous lecture, that is Acanthaceae. Just a minute. Acanthaceae, we can have a look first and later on we will start a new family. So in our previous lecture, we have studied family. Take a minute, just a minute. So in previous lecture, अभी तो आपको दिख रहा है, पूरा स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, मेरी आवाज आ रही? Yes, Yes, sir. sir. So in our previous lecture, we have studied this family Acanthaceae, which having very important plants. First one I have told you, that is this plant भुई गेंदा मराठी में बोलते हैं, and this plant is observed on the open grassland normally during the late winter season के बाद दिखता है, इसको बोलते हैं भुई गेंदा, and the name is, क्या नाम है इसका? हेलो, हेलो, just a minute. हेलो, just a minute. आप Yes, sir. थोड़ा सा इंतजार करो, कुछ तो मेरे यहाँ बाहर गड़बड़। मेरी आवाज आ रही? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली कुछ रिपेयरिंग वर्क की वजह से ट्रैफिक पूरी डाइवर्ट हो गई और मेरे घर के सामने से ही ट्रैफिक आ गई, तो कुछ तो झगड़े हो रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा वेट करवाया आपको. सो in previous lecture we have studied the family, that is Acanthaceae, and as far as Acanthaceae family considered, there are so many plants. Out of these different plants, I have shown the plant that is Lepidognathis cristata. So here is the Lepidognathis cristata, which belongs to family Acanthaceae. Then this one, that is you call in Marathi, that is Aboli, which is also known to you. Then this one is the species of Thumbergia. Then first one and this one and this one, these photographs of Adathoda vasica or Adulsa. This one single flower, this one group of flowers, and this one vegetative parts of Adathoda vasica. Then Rangia repens or Rangia petans, another important plant from this family, and this one Andrographis paniculata. So you are well known with these different plants, and I have
told you that the about 20 different genera, 25 different genera from this family. But out of these different genera, you might be known with Lepidognathis, then another Adathoda, then another genera Andrographis, Rangia, Barleria. लास्ट टाइम हमने देखे थे बार्लेरिया के बहुत सारे स्पेसीज देखे थे. देन हाइग्रोफिला शुल्ली और जस्टिसिया शुल्ली आल्सो इट इज कॉल्ड एज. देन I have told you much more things, and I have shown also videos regarding Strobilanthes kunthiana, उसके बारे में हमने देखा था. And new name of Adusa, that is Justicia Adathoda. So you are known with this family. But as far as this family considered, in the previous lecture we have studied characteristic features of family, characteristic features of advanced nature, primitive nature, that we have already completed. But now I am going to repeat the important characteristic features of Acanthaceae. Now as far as Acanthaceae considered, the plants of this family, these are mostly herbaceous or shrubby. आप लोगों ने अभी अभी जितने भी जनरा देखे थे उसमें देखो Acanthus, that is Lepidognathis herbaceous, Adathoda herbaceous to shrubby, then Andrographis herbaceous, Rangia again herbaceous, Barleria shrubby, Ruellia herbaceous, then Hygrophila herbaceous to shrubby, then Strobilanthes again herbaceous to shrubby, Thunbergia is a climber sometime, then Justicia is again herbaceous to shrubby. So in this way, in case of this family, the plants are herbaceous or shrubby. Leaves opposite decussate and exstipulate. Exstipulate means without stipule, and opposite decussate, that means on as far as opposite phyllotaxy considered, on the node there are two leaves which are opposite to each other, but on the alternate node they are in 90 degrees angle, and that's why it is called as opposite decussate type of phyllotaxy. Exstipulate, that is without stipule. Inflorescence, typically cymose type of inflorescence. Flowers bracteate or bracteolate. Zygomorphic, शुरू में ही मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर इट बिलोंग्स टू गैमोपेटैली, या petals are fused, that is they are showing 3+2 condition, so they are zygomorphic, bisexual, hypogynous, that means ovary is superior. Calyx 5 और 4, हमने बहुत बार देखा है कि कैलिक्स 5 रहते हैं, हमने बहुत सारे थंबर्जिया में देखा था कैलिक्स 5 है, लेकिन कुछ प्लांट्स में कैलिक्स 4 भी होने की संभावना है. Corolla pentapartite means they are 5 in number. Gamopetalaceous, gammo means fused, often bi-lipped यानी 2 lips में, जैसा आप ये देख रहे हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, नीचे वाले 2 और ऊपर वाले 3 ऐसे दिखते हैं. Stamens 4 to 2 यानी 4 हो सकते हैं या 2. Didynamous, di means 2, that is forming 2 bundles, that is अगर 4 है तो 2 बड़े 2 छोटे. Sometime polyandrous and epipetalous. Epipetalous means attached to petal. Carpels 2, syncarpus, ovary superior, axile placentation, style simple and stigma bilobe. मैं चाहे तो आपको ये फोटोग्राफ थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाता हूँ. अगर मैंने इस फोटोग्राफ को एनलार्ज किया तो आपको क्या दिखता है, देखो स्टैमेन कितने दिख रहे हैं, हेलो स्टैमेन कितने दिख रहे हैं यहाँ इस केस में, क्या आप लोग सुन रहे हैं, हेलो? यस सर. हाँ, स्टैमेन कितने दिख रहे हैं सर? 2 स्टैमेन. 2 ही है, क्योंकि मैंने अभी बताया था स्टैमेन आइदर 2 और स्टैमेन में भी 4. तो हम दूसरी फिगर आपको दिखाते सो दैट इट इज क्लियर टू यू. दूसरी फिगर, जस्ट मिनट, यहाँ हमें स्टैमेन देखते हैं क्या, जस्ट मिनट, वो भी नहीं है तो हम और एक आपको बता देते, जस्ट मिनट. एलिस ऑफ Adathoda flower.
जस्ट मिनट। स्टैमेन कितने दिख रहे हैं यहाँ? ये देखो यहाँ भी आपको 2 ही दिख रहे, ठीक है। स्टैमेन यहाँ भी आपको 2 ही दिख रहे, मतलब हेलो, यस ये स्टैमेन मतलब आपको ये छोटा वाला दिख रहा है, ये देखो एंथर है, ये फिलामेंट है, इस तरह ये फिलामेंट है, ठीक है। और ये जो लोब जो है अपर लोब करोला का, वो यहाँ 2 करोला लोब दिख रहे हैं, यहाँ 3 दिख रहे हैं, मतलब 2+3 कंडीशन, ऊपर वाले 2 है और नीचे वाले 3 है। आ रहा है ध्यान में? हेलो, यस सर। जस्ट मिनट, मैं अगर आपको अपने पास दूसरी कोई अच्छी डायग्राम है तो वो भी दिखाता। जस्ट मिनट। बाइलिप्ड क्यों बोलते हैं, यहाँ आपके ध्यान में आता है, ये अपने ओठो जैसे यानी बाइलिप्ड स्टेमेन यानी करोला दिख रहा है। यू कैन ऑब्जर्व इवन इन दिस आल्सो, तो नहीं दिख रहा है। जस्ट मिनट। सो दिस वन इज रिलेटेड टू आवर फैमिली एक्यांथेसी। एक्यांथेसी हम देख रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई कैरेक्टर अपना बचता है तो दैट इज आल्सो। फ्रूट्स लोक्यूलिसाइडल कैप्सूल, सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक एंड विथ जैक्यूलेटर्स। क्या आप लोगों को जैक्यूलेटर्स के बारे में कुछ आइडिया है? एनीथिंग? हेलो, जैक्यूलेटर्स? नो सर। बताता हूं मैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं जैक्यूलेटर्स। ये क्या, कौन सी डायग्राम है? कोई बता सकता है ये कौन सा प्लांट पार्ट है? एनीबडी? हेलो, ये कौन सा प्लांट पार्ट है? लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, क्या है? लीफ। नहीं, these are not a leaf, this one is a fruit। अब इस फ्रूट को आपने ओपन हुआ देखा है और उसके अंदर जो सीड्स थे वो बाहर निकल गए, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। एंड इस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा चाहे तो और दूसरा दिखाता हूँ। क्या आपने आबोली किंवा काटेकोरांटीचे वाळलेले फ्रूट बघितले? यस हेलो, सर। शायद आपने अगर गार्डन में जब पानी डालते हैं तब आपने देखा होगा कि जैसे ही पानी डालते वैसे तड़ तड़ करके यानी तड़ तड़ आवाज आता है और वो फ्रूट्स फूट जाते हैं और उससे सीड्स बहुत सारे बाहर बिखरते। क्या आपने ये देखी है बात? हाँ सर। वो जो फ्रूट्स बाहर निकलते हैं, सीड्स बाहर निकलते हैं, उसका रीजन है ये जैक्यूलेटर्स। ये एक्चुअली सॉफ्ट टिश्यू होता है, ड्राई होने के बाद एक्चुअली व्हेनेवर इट कम्स इन कांटेक्ट ऑफ वाटर, ये जो स्प्रिंग जैसा है वो ओपन होता है और उसकी वजह से उसके आजू बाजू में जो सीड्स है वो बिखर जाते हैं या स्प्लिट्स आउट। सो दीज आर कॉल्ड एज जैक्यूलेटर्स। तो मैंने इसके पहले आपको बोला था कि जब इसको आप पानी डालते तो शायद हो सकता है आपने उसके बारे में देखा होगा। चलो हम जैक्यूलेटर्स का विकी डिक्शनरी में क्या दिया है देखो। पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस एंट्री हैज बीन इन जस्ट मिनट। Circulator, one holds, just minute, हम ग्लॉसरी में देख लेते। Hook like structure derived from funicle of many acanthaceae that aids the dispersal by ejecting the seeds from fruit, same as retinaculum। क्या आपने रेटिनाकुलम इसके पहले देखा है? हेलो, रेटिनाकुलम की या इलेक्टर्स की बात सुनी है इसके पहले? इलेक्टर्स सुना है सर। इलेक्टर्स शायद अभी आपके ध्यान में है। तो हम जब ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरास देखते हैं तो वहां आपने इलेक्टर्स देखे होंगे। और इलेक्टर्स के बारे में हम क्या बोलते हैं? इलेक्टर इज हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू, स्पाइरली कॉइल रहता है। जब भी वो स्प्रिंग लाइक अनकॉइल होता है तो उसके आजू बाजू में जो स्पोर है वो स्प्रेड हो जाते। वेरी सिमिलरली टू दिस, दीज आर द जैक्यूलेटर्स। जैक्यूलेटर्स आर हुक लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है जब भी पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो स्ट्रेट हो जाते हैं और सीड्स जो बाहर फेंकते। तो अभी आपके ध्यान में आया?
Hello. Yes, sir. So jaculators are useful for dispersal of seeds. शायद लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं ये बताना आपको भूल गया था, सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया था. So this is the part that is regarding family Acanthaceae, where we have studied so many genera. मैं बार बार जनरा की तरफ जा रहा हूँ फिर से. Lepidognathis, Acanthus, Adathoda, then Andrographis, Rangia, Barleria, Ruellia, Hygrophila, Strobilanthus, Thumbergia, and Justicia. So these are the important genera of Acanthaceae, and these are the important characteristic feature. As far as economic importance of this family considered, many more plants are used for medicinal purpose, and the most important plant is Andrographis paniculata, which is used in liver disorders, and another very important, that is Adathoda vasica, or which is known as Adulsa, which is used for various bronchial disorders and common cough. Then as far as ornamental, as these flowers are showy, these are grown from different genera such as Acanthus, Barleria, Justicia, Thumbergia, Jacobinia and Ruellia. ये सब चीजें हमने लास्ट टाइम कंप्लीट की है. नो नीड टू गो थ्रू दिस. इज इट राइट? हेलो. Yes, sir. अभी Acanthaceae को मैं क्लोज कर रहा हूँ. Acanthaceae को क्लोज किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी हमें नेक्स्ट फैमिली देखनी है. मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. यूनिट नंबर 4 या मॉड्यूल नंबर 4 कंपैरेटिवली अपना फोर्थ मॉड्यूल बड़ा है, यानी सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें करीबन 12-14 फैमिलीज है, एंड दैट्स व्हाई दिस यूनिट इज कंपैरेटिवली बिग यूनिट. But remember, here we are going to study the families according to APG4 system, and that's why according to APG4 हमने सभी families को classify किया है. हमने कहीं भी टर्म families में एक किंगडम छोड़ने के बाद बाकी सभी क्लेड्स है. हमने कभी भी सब किंगडम, डिवीजन, सब डिवीजन, ये टर्मिनोलॉजी हमने यूज नहीं की. So first we have completed families of Anithagrade, that is Amborulaceae and Nymphaceae. Amborulaceae, Nymphaceae and Hidaythylaceae we have completed from Anithagrade, which are comparatively hydrophytic families and comparatively showing some important primitive characteristic feature. उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था मैग्नोलिड्स. मैग्नोलिड्स को हम हमेशा इसके पहले प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म कहते थे. तो अकॉर्डिंग टू APG4 हमने मैग्नोलिड्स देखा था. इमीडिएटली आफ्टर Anithagrade and Magnolids we have studied families from monocot. From monocot we have studied two families, that is Araceae, and from Commelinoids Ericaceae. Ericaceae and Araceae, these are two different families. One belongs to Aroid and another belongs to Palmy group or palm group. उसके बाद हमने अलग अलग क्लेड्स देखे थे. From Eudicot we have studied Papaveraceae. From core Eudicots we have studied Amaranthaceae. From Uracids we have studied Uracid 1 से Amaranthaceae and Uracid 2 से Malvaceae family. उसके बाद एस्टरिड्स से हमने एक फैमिली पढ़ी थी, that is Sapotaceae. उसके बाद यू एस्टरिड्स 1 से Jansenaceae और Acanthaceae फैमिली देखी, और अभी हम यू एस्टरिड्स 2 में से नेक्स्ट फैमिली देख रहे हैं, दैट इज Apiaceae. चलो, Apiaceae फैमिली का नाम इसके पहले आपने सुना है? हेलो, क्या Apiaceae फैमिली का नाम इसके पहले आपने सुना है? Yes, sir. Apiaceae का पुराना नाम क्या था? हाँ? Apiaceae का पुराना नाम क्या था? Anybody? हेलो, कोई बता सकता है Apiaceae का पुराना नाम? कोई भी नहीं? जयंत? Amberyllaceae, sir. अम्बेरिलेसी नहीं, अम्बेलिफेरी. उसका पुराना नाम था अम्बेलिफेरी. अब ये अम्बेलिफेरी नाम क्यों आया, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता. इन
members of this family typically umbel inflorescence is observed, and that's why this family is known as umbelliferae. आप सभी लोग सुन रहे हैं? आप सभी लोग सुन रहे हैं? मैं आपको पहले अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताता और बाद में हम सामने जाते। क्या आप लोग सुन रहे हैं अभी? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को जो फिगर दिखा रहा हूं उसको देखने के बाद छाता अगर उल्टा किया तो जैसा लगता है वैसे दिख रहा है। छत्री उलटी केल्यानंतर जशी दिसते, म्हणजे वरचा पोर्शन कॅनॉपीचा जो आहे तो फक्त असा कर्व असता तर इट इज जस्ट लाईक अम्ब्रेला. इज इट राईट? Yes, हेलो? sir. Yes, sir. Is it right? And that's why it is known as umbel type of inflorescence. अब umbel के बाद शायद आपने देखा होगा compound umbel. क्या आप ये inflorescence देख रहे हैं? हेलो? Yes, हेलो? sir. Yes, sir. तो इस inflorescence में आप देख सकते हैं ये सिंगल अम्बेल है और ये बहुत सारे अम्बेल एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं, तो इसको बोलते हैं अम्बेल ऑफ अम्बेल. हेलो? या इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड अम्बेल. क्या आप लोगों ने सौंफ का प्लांट या सौंफ का इन्फ्लोरेसेंस देखा है? हाँ सर. Yes, sir. या धनिया का भी देखा होगा आपने? धनिया में भी ऐसा दिखता है ना? हेलो? Yes, yes, sir. हरा धनिया आपने देखा है? जस्ट मिनट. हरा धनिया मतलब आप जिसको बोलते हैं सांबार या कोथिंबीर, whatever it is, हरा धनिया इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं हम हरा धनिया इन्फ्लोरेसेंस. क्या आप लोग ये इन्फ्लोरेसेंस देख रहे हैं अभी? यहाँ देखो बहुत सारे अम्बेल इकट्ठा है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अम्बेल ऑफ अम्बेल. क्या आप ये फ्लावर देख रहे हैं? जस्ट मिनट. यहाँ देखो इन्फ्लोरेसेंस आपको दिख रहा है. ये सिंगल अम्बेल है और ये अम्बेल ऑफ अम्बेल है. क्या आपको दिख रहा है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, जस्ट मिनट. मैं आपको फिर से जो हरा धनिया के बारे में बोल रहा था वो दिखा था. अभी आप फ्लावर देख रहे हैं धनिया का या हरा धनिया या सांबार या कोथिंबीर के फ्लावर देख रहे हैं. फ्लावर्स कैसे है देखो. पेरीफेरल फ्लावर जो है वो कैसे है? मैच्योर. और बीच वाले जो है वो सभी क्या है? बर्ड्स. इज इट राइट? Yes, sir. So you can observe in case of hara dhaniya that is central flowers are younger flowers and peripheral flowers are mature flowers. मैं अभी आपको दूसरा बताता हूँ. ये क्या है? हेलो? Seeds. सीड्स या फ्रूट्स. सीड्स एंड फ्रूट्स. मैं जस्ट मिनट फ्रूट्स दिखा देते. शायद आप सभी लोगों को फ्रूट्स मालूम है. हरा धनिया फ्रूट्स. हरा धनिया निकाल देते, उसका नाम ही डालते कोरिएंडरम सटाइवम. हमने अभी फैमिली स्टार्ट नहीं की, मैं सिर्फ. चलो, क्या ये दिख रहा है आपको फ्रूट्स? Yes, sir. फ्रूट्स के सरफेस के ऊपर रिजेस एंड फरोज है. क्या फ्रूट्स के सरफेस के ऊपर रिजेस एंड फरोज दिख रहे हैं? हाँ, sir. ओके. जब आप सांबार मार्केट से लाते और वो करीबन फुल्ली मैच्योर नहीं है तब स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है. हाँ, sir. ओके. चलो मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ. अगर एट मैच्योरिटी ये स्ट्रक्चर ऐसा है, सो दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज वेरी टिपिकल फ्रूट इन केस ऑफ फैमिली दैट इज एपीएसी. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सांबार प्लांटेशन करना है तो ये सीड्स कैसे स्कैटर करते मालूम है? प्लांटेशन के लिए सांबार पेरण्याकरता शेतात ज्या वेळेला टाकतात त्यावेळेला धणे कसे पेरतात माहिती आहे तुम्हाला? हेलो? No, sir. आप में से किसी को भी मालूम नहीं है? जयंत? तर ते असेच टाकतात ना, म्हणजे हाँ डिस्पर्स करतात ना सर.
नाही, डिस्पर्स करतात, पण सीड्स असे इंटॅक्ट असतात का? नो सर, वो सीड को अलग अलग करते हैं। सीड्स को स्प्लिट करते, और शायद हाँ। आपको पता होगा सीड्स को स्प्लिट क्यों करते हैं, तो उसका जो सरफेस है, कोटिंग है, हार्ड है, वाटर इज अनेबल टू एंटर इनसाइड, वाटर एंटर इनसाइड नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई इट इज इसेंशियल टू क्रश इट। और शायद आपको पता होगा सीड्स क्रश कैसे करते हैं, तो सीड्स क्रश करते हैं जूते का यूज करके, मतलब रफ सरफेस पर उसको आपण मराठीत त्याला म्हणतो घासतात, आणि घासल्यानंतर काय होतं, रफ सरफेस मुळे एम्ब्रियो किंवा आतमधला इंटरनल पार्ट जो आहे तो खराब होत नाही, फक्त वरचा सरफेस जो आहे तो स्प्लिट ओपन होतो. सो यू आर बेटर नोन विथ कोरिएंडर सीड्स. सो दीज आर द कोरिएंडर सीड्स, दे आर स्प्लिट ओपन, और स्प्लिट ओपन करने के बाद उसको यानी ये करते. चलो, so you are known with this family, that is Apiaceae family. अभी हम पहले इसके तरफ ना जाते हुए हम कुछ प्लांट्स के तरफ जाते, the so that we have idea. Angelica, the first genera is Angelica, second genera is Pimpinella. शायद आपको एंजेलिका मालूम नहीं है. अब हम देखते हैं पिम्पिनेला के बारे में. क्या आपने पिम्पिनेला के बारे में सुना है नाम? हेलो, नो सर। पिम्पिनेला का नाम भी नहीं सुना आपने? नहीं सर। क्या आपने ये प्लांट्स देखे हैं, ये ऐसे सीड्स देखे हैं? पिम्पिनेला एनिसम सीड्स देखे हैं? हेलो, नहीं सर. आपल्याकडे मराठीत काय म्हणतात याला माहिती आहे का? हेलो, No sir. just a minute. Local name in Marathi, just a minute, I have some doubt. पिम्पिनेला एनिसम, अब मीनिंग इन मराठी, मराठी में मीनिंग देखते. इसमें मराठी में बड़ी शेप दिखाया है, लेकिन ये इसका पुराना नेम है. दिस इज नॉट अ बड़ी शेप, ये गलत है, बड़ी शेप नाम नहीं है इसका. शायद जस्ट मिनट में आपको बताता. हेलो, जस्ट मिनट में आपको बताता उसका लोकल नेम क्या है. ओके, क्या आपने सब्जा का नाम सुना है? हेलो, नो सर। मराठी में सब्जा बोलते हाँ सर। मराठी में सब्जा बोलते हैं, लेकिन दिस पिम्पिनेला मस्ट बी आल्सो नोन टू यू. मेरे पास अभी पिम्पिनेला का ऑथेंटिक नाम नहीं है, लेकिन पिम्पिनेला मतलब बड़ी सोप तो पक्का नहीं है. जस्ट मिनट, मैं कहाँ ढूंढ रहा था पिम्पिनेला, जस्ट मिनट. हम देखते पिम्पिनेला एनिसेसिड्स, पिम्पिनेला संस्कृत में सौफ ही नाम दिखा रहा है, हिंदी में भी, लेकिन सौफ में भी शायद आपको पता होगा बड़ी और छोटी दो अलग अलग रहते हैं. हेलो, यस सर। बड़ी और छोटी दो अलग 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 रहते हैं. आपने सब्जा के बारे में सुना है? हेलो, सब्जा का नाम सुना है? हाँ सर। शायद पानी में डालने के बाद उसको थोड़ा सा सीड्स जो है, उसके सीड का कवरिंग जो है वो फूल जाता है. शायद सब्जा के बारे में भी आपने सुना होगा. सो पिम्पिनेला. उसके बाद हम देखते एसाफोइटिडा. एसाफोइटिडा मतलब कौन सा प्लांट? हेलो, एनीबॉडी? हिंग। 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 क्या हिंग अपने यहाँ पैदा होता है? इंडिया में हिंग पैदा होता है या नहीं होता? हेलो, हेलो, इंडिया में हिंग पैदा होता क्या नहीं होता? एनीबॉडी?
कोई नहीं बोल रहा है। फिरुला असाफोइटिडा बिलोंग्स टू फॅमिली एपिएसी अँड इट इज नोन ॲज हिंग अँड इट इज मोर, आपल्याकडे हिंगाचे जे ट्रेडिशनल हे असतात म्हणजे मार्केटमध्ये जे मिळतात, जो हिंग मिळतो त्याचं नाव काय असतं, कोणी सांगू शकेल? कसला हिंग म्हणतात? एनीबडी? हॅलो, कसला हिंग म्हणतात? कोणालाच माहिती नाहीये? हॅलो खडे हॅलो, बांधानी हिंग नो म्हणतात आपल्याकडे, ऐकून माहिती असेल तर बघा, बांधानी हिंग म्हणतात. अँड मोस्ट ऑफ द हिंग विच इज प्रोड्यूस्ड इन इराण. यस, so as far as Firula asafoetida considered, it is known as hing and it is obtained from roots as well as the stem. It is just a exudation. And Firula asafoetida, which is most produced in ईरान. चलो मैं आपको उसका जस्ट मिनट, मैं आपको उसका फोटोग्राफ दिखाता हूँ। क्या आप मेरे हाथ में एक बॉटल देख रहे हैं? हाँ सर। क्या ये बॉटल आप लोगों ने भी यूज की होगी, आपके भी घर में होगा? हेलो, है सर। दिस इज ब्रांड विच हैज नेम वनदेवी, उसके ऊपर लिखा है कि कंपाउंड असाफोइटिडा। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि असाफोइटिडा कंपाउंड क्यों बोलते हैं, इट इज नॉट प्योर असाफोइटिडा, बिकॉज प्योर असाफोइटिडा बहुत ज्यादा महंगा होता है, इट इज जस्ट एक्सुडेशन ऑफ द प्लांट। अब इसमें मैं इंग्रेडिएंट्स पढ़ता हूँ, राइस फ्लोर, एडिबल गम, असाफोइटिडा, राइस फ्लोर 73%, मतलब इसमें चावल का फ्लोर जो है 73% है, और बचा हुआ जो है उसमें एडिबल गम भी है, और असाफोइटिडा की क्वांटिटी 20% से ज्यादा नहीं है। शायद आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा, इसकी खुशबू आपने महसूस की होगी। शायद आपने और एक दूसरा ब्रांड भी देखा होगा। क्या आपने ये ब्रांड असाफोइटिडा का देखा है? हेलो, हाँ सर। ये ब्रांड भी आपने देखा होगा। और शायद आपको पता होगा कि अगर हमने कंपैरेटिवली प्राइस देखी तो मैं बताता हूँ प्राइस, कंपैरेटिव प्राइस क्या है। इट इज अबाउट 150 रुपीज एंड दिस वन इज अबाउट 250 रुपीज। सो मैंने आपको ये दोनों दिखाए। मैं और एक ब्रांड आपको दिखाता हूँ, मैं जानबूझ के आपको दिखा रहा हूँ। ये अनदर ब्रांड अवेलेबल इन मार्केट, मार्केट में अनदर ब्रांड जो अवेलेबल है वो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये कंपाउंड असाफोइटिडा जो है, ये कंपाउंड असाफोइटिडा की ये पाउडर है, एंड इट इज 250 ग्राम ऑफ पाउडर, एंड 250 ग्राम पाउडर फॉर दिस नवजीवन ब्रांड विच इज अबाउट 250 रुपीज पर पैकेट। सो यू रिमेंबर जस्ट असाफोइटिडा अवेलेबल। आपल्याकडे आणखी एक हिरा हिंग म्हणतात, माहिती आहे तुम्हाला? हॅलो, हो सर। मार्केटमध्ये हिरा हिंग म्हणतात। हिरा हिंग म्हणण्याचं कारण काय सांगतो, हिरा हिंग इज अ प्युअर फॉर्म ऑफ अ हिंग, हिंगाचा प्युअर फॉर्म आहे तो, येते लक्षात, आणि म्हणून त्याची किंमत काय असते, त्याची किंमत जास्त असते। आपण थोडासा हिंगाबद्दलची डिस्क्रिप्शन काय आहे ते वाचूया। जस्ट अ मिनिट। मीट हिंग द सीक्रेट वेपन स्पाइस ऑफ इंडियन कजिन, इंडियन कजिन का सबसे सीक्रेट वेपन कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइस। द मोमेंट, जस्ट अ मिनट, हिंग कम्स फ्रॉम, जस्ट अ मिनट, कहा जा रहा है, चलो हम विकिपीडिया में देख लेते। असाफोइटिडा आल्सो is a dried latex that is oleoresin exuded from the rhizome or taproot of several species of Firula. Firula asafoetida के several species से निकाला जाता, and it is specifically from rhizome or underground roots.
perennial herb growing 1 to 1.5 meter. They are part of the celery family, that is Umbelliferae or Apiaceae. Notably, Asafoetida is thought to be in the same genus, that is Silphium, North African plant now believed to be extinct, and was used as a cheaper substitute for that historically important herb from classical antiquity. Asafoetida has a pungent smell, lending it is in tribal name stinking gum. The odor disappears upon cooking in cooking dishes. It is delivers a smooth flavor. इसमें अलग अलग इसके ये दिए हैं. अब हमें थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में देखना है. Asafoetida was familiar in early Mediterranean, having Asafoetida early Mediterranean में familiar था. Just a minute. Asafoetida was familiar in early Mediterranean, having come by land across the Iran. मैंने अभी आपको बताया था कि hing is more produced from Iran. It is entered in Europe from expeditions of Alexander the Great, who after returning from a trip in northeastern ancient Persia, though they had found a plant almost identical to frame that is Silphium और साइरिनी इन नॉर्थ अफ्रीका. चलो हमें इससे और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है. Asafoetida बिलोंग्स टू फैमिली एपिएसी. मैंने ईरान या ओल्डर नेम जिसका पर्सिया था वहां से बताया था. उसके बाद कैरावे. कैरावे मतलब कौन सा प्लांट? एनीबडी? हेलो, कोई बता सकता है? कैराइवम कार्वी यानी कौन सा प्लांट है? कैराइवम कार्वी मतलब अपना लोकल जीरा. हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? कार्वी का मतलब है अपना लोकल जीरा. यू माइट हैव ऑब्जर्व नंबर ऑफ डिफरंट व्हरायटीज ऑफ जीरा. जीरा मध्ये एक प्रकार तुम्हाला माहिती असेल ज्याला शहाजिरे म्हणतात. हेलो, क्या आपने शहाजिरा का नाम सुना है? छोटा रहता है लेकिन इन स्पाइस इट हैज वेरी importance. So this one Caraivum carvi, that is which is known as commonly known as carve or it is known as a jeera. उसके बाद Apium graveolens. Apium graveolens का कॉमन नेम किसी को पता है? अजवाइन. अजवाइन. Apium graveolens means अजवाइन. तो अभी आपको इस फैमिली के बारे में ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जीरा जानते हैं, सौंफ जानते हैं, सांबार या कोथिंबीर जानते हैं, अजवाइन जानते हैं, and so it is very important and known to you because these are important in culinary preparations or in preparations of as a spice or condiment. मी स्पाइस किंवा कॉन्डिमेंट म्हटले, सो इट इज नोन टू यू. हम नेक्स्ट देखते. सिलरी. क्या आप सिलरी के बारे में देखा है, जाना है, सुना है? हेलो, क्या आपने सिलरी के बारे में नाम सुना है कभी? नो सर. सिलरी नाम जाना नहीं है? गया नहीं सर. सिलरी म्हणजे आपण सॅलड मध्ये जे प्लांट्स घेतो दीज आर नोन ॲज अ सिलरी. मार्केटमध्ये तुम्ही अशा प्रकारचे असणारे सॅलड करता स्पेसिफिकली जसं ब्रोकोली वापरतात तसा सिलरी पण लार्ज स्केल वरती वापरतात. सो सिलरी माइट बी नोन टू यू. सो विच इज नोन ॲज अ सिलरिक एपियम. थोडासा दिसायला तो आपल्या हरा धनियासारखाच असतो बट सिलरी इज अ डिफरंट. सो सिलरी दॅट इज Apium graveolens variety Rapaceum which is known as a celery. उसके बाद सिसली that is Myris odorata. मतलब एक बात अभी तक आपके ध्यान में आ गई होगी, that is members of this family shows presence of a specific scent. आपके ध्यान में आया? अभी तक हमने जितने भी प्लांट देखे उन सभी प्लांट में एक स्पेसिफिक टाइप की ओडर है. सो दिस इज मायरिस ओडोराटा. ओडोराटा का मतलब ही है उसको खुद का कुछ तो स्मेल है. सो दिस वन इज अनदर प्लांट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस फैमिली. देन एंथेरिस्कस सिरिपोलियम. हम आप लोग इसको नहीं जानते. कोरिएंडरम सटाइवम के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है. उसके बाद ऑक्सीपोलिस, ये भी आप नहीं जानते.
हॉगवुड को भी आप नहीं जानते, दैट इज हिरासिलियम स्पॉन्डिलियम। सो इस प्लांट को भी आप नहीं जानते। उसके बाद क्यूमिन, हम जिसको जीरा बोलते हैं, दॅट इज क्युमिनम सायमिनम किंवा जिरा। जिरा आणि शहाजिरा मी दोन सांगितले होते, तर हा आहे क्युमिनम सायमिनम। चलो हम इसका भी फोटोग्राफ देख लेते। आई नो दैट वी हैव वेरी लेस टाइम। आज मैंने कोई भी कैरेक्टर लिया नहीं है, बिकॉज दिस फैमिली इज कंपैरेटिवली इम्पोर्टेंट। यू शुड बी नोन विथ एटलीस्ट some plants. So this one is cuminum that is nothing but our normal जीरा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, that is एंथियम ग्रेवियोलेंस, इसके बारे में हमने पहले देखा था। उसके बाद कोनोपोडियम मैजस, क्या है कोनोपोडियम मैजस, इसके बारे में हम देखते हैं। It is important to show you these plants, and only it is possible to show you these plants on Google, because each and every plants की फिगर अपने पास होने के चांसेस नहीं है। So this one is Conopodium majus and these are the seeds of Conopodium majus। चलो हम कोनोपोडियस, अभी तक हमने जितने प्लांट्स देखते हैं उन सभी प्लांट्स में हमने एक कॉमन चीज देखी कि इट हैज अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। चलो नेक्स्ट देखते, फोइनिकुलम वुल्गर। फोइनिकुलम वुल्गर का मतलब है अपनी नॉर्मल सौंफ। उसके बाद लेविस्टिकम ऑफिसिनेली, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद पेट्रोसेलियम क्रिस्पम, देन पेस्टिनिका सटाइवा, देन कोनियम मैक्यूलियाटम, एपियम ग्रेवियोलेंस एंड ट्विंस एनी, दैट इज डेकस कैरोटा। डेकस कैरोटा मतलब कौन सा प्लांट है? एनीबॉडी? हेलो, डेकस कैरोटा मतलब कौन सा प्लांट है? डेकस कैरोटा मतलब कौन सा प्लांट है? हेलो, कैरोट। कैरोटा है तो कैरोट है, उसमें सोचने की क्या जरूरत है। क्या आप लोगों ने कैरोट को फ्लावरिंग देखा है? फ्लावरिंग और कैरोट के सीड्स देखे हैं? चलो अगर नहीं देखे तो हम देखते हैं डेकस कैरोटा सबस्पेसीज सटाइवस। उसके बाद वाटर हेमलॉक, दैट इज सिक्यूटा, मैं सिक्यूटा की बात कर रहा हूँ, विच इज नोन एज वाटर हेमलॉक। चलो हम ये भी स्पेसीज क्या है देखते हैं। सिक्यूटा, सिक्यूटा अगर देखा तो दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग इन्फ्लोरेसेंस। कितने सारे ये है, आप देखो इन्फ्लोरेसेंस बहुत सारे हैं, एंड सो इट इज कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। मैंने बार बार कंपाउंड अम्बेल की बात की थी। And here you can observe it has also some homeopathic medicine which is produced from this cicuta। उसके बाद हम next देखते हैं water person and species is siam। So as far as this siam considered, हम just देखते siam, it is available in hydrophytic habitat and hence it is known as water siam। You can look it on background। चलो तो अभी अभी हमने आज बहुत सारे प्लांट्स डिस्कस किए। कौन कौन से प्लांट देखते हैं? जीरा, अजवाइन, सौंफ, कोरिएंडर, ये 4 प्लांट्स तो मिनिमम है, और हिंग। एज फार एज these 5 plants considered, these 5 plants are one of the important plants of the spice in culinary preparations, or these are important spice। उसके बाद आपको आज और एक प्लांट में बताता हूं। क्या आपने शेपू का नाम सुना है? हेलो, यस सर। यस सर। शेपूची भाजी खातात? हेलो, शेपूची भाजी खातात? हाँ सर। शेपूची भाजी खातात का खातात शेपूची भाजी? एनीबडी? हेलो, शेपूची भाजी का खातात? नहीं पता। शेपूची भाजी खास करून खातात पोट साफ करण्याकरता। तुमच्या लक्षात आलं असेल, जिरं, हिंग, कढीपत्ता हे जे सगळे पदार्थ आहेत, दे हॅव स्पेसिफिक स्मेल, आणि या स्मेल मुळे काय होतं, डायजेशनला मदत होते, ऍज इट इज अ डायजेस्टिव्ह, आणि म्हणून शेपूची भाजी काय करतात, खाण्याकरता वापरतात। बऱ्याचशा लोकांना माहिती असेल की शेपूची भाजी दे डिसलाइक बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल। आता इथं सीड्स बघा, इथं तुमच्या लक्षात येईल शेपूची भाजी
फ्री सीड्स कसे असतात मी मुद्दाम दाखवतोय तुम्हाला. अँथियम ग्रॅव्हिओलेन्स, मगाशी जे प्लांट आपल्याला ज्याचं नाव मिळत नव्हतं, दॅट इज द सेम अँथियम ग्रॅव्हिओलेन्स. आणि अँथियम ग्रॅव्हिओलेन्स म्हणजे शेपू. ठीक है, हेलो, यस सर. क्या Yes, आप sir. लोग सभी सुन रहे हैं? आज हाँ, सर. अभी हाँ. ओके, आज अपना मते है क्या? Yes, sir. अनिकेत, अनिकेत नहीं है आज भी? ओके, चलो ठीक है. तो आज मैंने सिर्फ इस फैमिली को इंट्रोड्यूस किया है. बहुत सारे प्लांट्स इस फैमिली के जो है ये प्लांट्स हमने देखे हैं. जैसे कि फिर से मैं कुछ जनरा के बारे में बता देता हूँ. एंजेलिका, एनिसी, असाफोएटिडा, कैरावे, सिलरी, सिसी, चिरविल, कोरिएंडर, कॉवेन, काउ परशिप, hogweed, cumin, dill. So these are the different plants which are obtained from this family. इस फैमिली के बाकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर और अदर इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. शायद आपको अगला लेक्चर होगा. अपन आज यहीं पे रुकते और कल बाद में कंटिन्यू कर लेते. ठीक है, हेलो. Yes. तो आज हम यहीं पे रुकते. यस सर. नेक्स्ट टाइम ये फैमिली खत्म करेंगे और दूसरी स्टार्ट करेंगे. मैंने आज सिर्फ आपको इस फैमिली के प्लांट के बारे में बताया. दो चीजें जरूरी बताई मैंने. एक तो इस फैमिली के प्लांट को स्पेसिफिक स्मेल है. दूसरा अम्बेल और अम्बेलेट, अम्बेल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है. और कैरेक्टर अगर देखा गया तो सीड्स जो है, सीड्स शोज प्रेजेंस ऑफ कैरेंकल एंड सीड्स आर टफ. स्प्लिट ओपन करने के बाद ही उसको शो करते हैं. सो विद दिस वी आर गोइंग टू स्टॉप टुडे. We will continue the same in next lecture. Thank you. Thank you.